enjoying to have with you. It's really a nice thing and nice presence because things really impact a lot. No matter at all. Sometimes silence is also the big communication. Big conversation. It's very big message or the lesson there. So things are really going ahead positively. I consider, I evaluate or assess. Even I've been observing it that you are really going on a very right track. But the thing is what almost most of the people, lack one thing in their life that they never, get, happy. They never get relaxed, or they never become happy, or they never justify their important role or the certain role they have been performing or playing progressively towards the achievement, towards the fulfillment, towards the dream or the destiny they have been desiring for a very long time. It seems to them that they are losing, or they are suffering. They are, I mean, they have only miseries, they have only pains, they have only problems. So they have only, dismal and dark side in their life. And I say it's not so, dear students. Wherever you go to raise or to attempt and pose such questions, everybody, has such pattern and format of life there. So if you have problems, if you have pains, if you have sufferings or such negative, elements or the components in your life, it means you have been striving, it means you are moving, it means you are progressing, it means you are traveling, it means the trip to reach something, wonderful and amazing, or I say joyful. The point or the when you have selected, you have set to reach the fix, that will surely be availed or gained or achieved there. That's why such suffering, such pain, such problems, or such crisis, such distress, precisely speaking, that all such negative things, become the hub in your life. It's because of, only one thing, that you have movement, you have change. Okay, you have applied for something, that's why things happen to be so. And if you give up, if you quit, if you leave, if you abandon, if you say farewell to all of good things, the success or achievement or the destination you have decided to accomplish in your life, these things never occur. These barriers or these interruptions, right, they never ever occur in your life to stop or to prevent or to hurt or to, to be seen such issues or the painful issues, I say more specifically. So it is what the things will happen. So it is very positive. The more you suffer, the better you get the achievement, the better you get the purpose in your life, the better fruit you will get. Why mostly the example of fruit is given, that you will get the fruit in the end if you work hard, because you see that fruit doesn't grow suddenly. Fruit doesn't grow, in overnight. It needs time, it needs months, it needs years, even decades, okay, to grow and to offer you, to provide you very sweet taste there, right? So it is what, the fruit of your hard work, fruit of your labor, fruit of your commitment, fruit of your determination, fruit of your dream, fruit of your destiny, fruit of your, life achievement, life struggle, or the journey that will surely come one day. So fruit doesn't come, in minutes, in seconds, in days. If you have planted a tree, it takes lot of time. It takes care. It takes protection, It takes, all the nourishing, process, and then it grows to be a very fruitful there. Similarly, it is the reason, okay? It is, the way to reach that stage or the climax in your life by passing through certain, junctures, certain, points in life, and then you will see that fruit, over there, growing over there, and then it will give you that, the wonderful taste, there. So that's what, please, dear students, before before getting the fruit of the tree, how much pain or how much suffering of the hottest or the scorching beams of the sun, impact that tree, right? In summer, in hot summer, it is what? It is the suffering. But later on, the shade or the fruit of that tree, give a lot of solace to the people.
So you are solace, you are solution, you are relief, you are success, you are achievement, you are light, you are stars, you are superstars. No doubt at all. Believe yourself. I say believe yourself. And that is the mystery, that is the secret. But that secret is different. Okay, so let's come to discuss today. आज जो हम डिस्कस करेंगे, कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस किया। आज हम क्या डिस्कस करेंगे पता है आपको? कौन सा टेंस हम आज डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे यानी पास्ट सिंपल टेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, पास्ट सिंपल टेंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन मतलब यहां से पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपको इंट्रो दूंगा पास्ट टेंस का, कि पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस जो होता है वो मतलब किस तरीके से बनता है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, थोड़ा सा मतलब व्यू दे दूं आपको पहले, उसके बाद हम आते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। जो पॉइंट्स लिखी हुई होती हैं, पॉइंट्स इसीलिए लिखते हैं या इसीलिए नोट्स बनाते हैं, क्योंकि एक तो नोट्स आपको चाहिए, दूसरा ये कि नोट्स पे अगर कोई चीज लिखी हुई होती है तो कम टाइम में मतलब काफी चीजें जो है वो डिसिप्लिन्ड या ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्लियर हो जाती है, क्लियरिटी आती है। अदरवाइज आप देखो कभी ऐसा ऐसा मतलब होता है कि यानी इंसान जो है वो प्रेजेंट माइंड नहीं होता या वो डिस्ट्रैक्टेड होता है। तो जब डिस्ट्रैक्टेड होता है तो देखो इन चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो आपके टाइम को सेव करने के लिए मतलब ये चीजें रखनी पड़ती है। तो बात मतलब हम डिस्कस करेंगे पास्ट पास्ट सिंपल की बात करेंगे। ठीक है, पास्ट सिंपल की बात करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। अच्छा, जब पास्ट सिंपल का की बात आती है तो पास्ट सिंपल का मतलब होता है कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल। जब पास्ट सिंपल की बात आती है तो पास्ट सिंपल से मुराद क्या है? आपको आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, या पहले जो आपके टीचर्स होंगे यानी पुराने टीचर्स या टोटस जो होंगे आपके, टोटस मतलब टोटस TORTOIS, आपको पता होगा, मैंने देखो आपको पढ़ाया है या बताया समझाया है। ठीक है, फिर आप भले मुझे बता देना। तो जो टोटस ने आपको मतलब ये बात बताई होगी कि यानी ये जो टोटस है ना, TORTOIS, आपने सुना होगा TORTOIS, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है टोटस। मतलब वो जिन्होंने हमें पढ़ाया तो वो टोटस हो गए बेचारे। अब ये अप्रिसिएशन है, ये वैल्यू है, ठीक है, ये वर्थ है। आप देखो मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब ऐसा होता है तब तो मैं बोल रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्या मतलब आगे होता है, हमसे क्या होता है। अच्छा, तो आप देखें मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो हम पास्ट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं। कौन सी? पास्ट सिंपल टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। हाँ, मैं बात कर रहा था ना, जैसे प्रेजेंट का नाम आता है तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पास्ट का नाम आता है तो मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वो वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरी करता है। अब ये पास्ट सिंपल जो टेंस है, मिसाल के तौर पर हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? ये हम इस्तेमाल करेंगे जो फिनिश्ड टाइम होगा। अब फिनिश्ड टाइम के साथ, ठीक है, टाइम क्या होगा मतलब इसका यूज, या ये बात आप जहन में रख लो, जो फिनिश्ड टाइम होगा उस फिनिश्ड टाइम के साथ हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिनिश्ड टाइम के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रिसाइजली स्पीकिंग। अब इधर नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिनिश टाइम की जब बात हुई तो आप देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे किसके साथ? यानी इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कलर मार्कर का चेंज करके। जैसे आप देखो, अगर हम ऐसा लिखें, द अर्थ द अर्थक्वेक हैड destroyed the earthquake had destroyed a city few months ago. few months ago, ठीक है, the earthquake had destroyed a city few months ago, last year, मतलब कोई भी इधर लिखो, मतलब months ago, last year, ठीक है ना, या in 2005, मतलब जो भी लिखो आप, the earthquake had destroyed a city few months ago। तो मैंने ऊपर क्या लिखा है? कीवर्ड मैंने दे दिया, इधर देखो कीवर्ड दिया हुआ। और वैसे भी आप देखो मतलब कीवर्ड्स के बगैर आप जो है वो इस्तेमाल यानी नहीं करते। प्रेजेंट सिंपल टेंस के भी कीवर्ड्स दिए ना, तो पास्ट सिंपल के भी कीवर्ड्स होते हैं।
भी पास्ट के भी कीवर्ड्स होते हैं। या मिसाल के तौर पर आप देखो, अगर मैं ये आपको मतलब बताऊं कि अच्छा शी, ओके शी, कहाँ गए शी, अच्छा शी रिप्लाइड टू मी 3 times, ठीक है, शी रिप्लाइड टू मी 3 times, देखो ये हो गया, ठीक है, शी रिप्लाइड टू मी 3 times, यस मतलब देखो she has told me, she has told me something important yesterday। मतलब यहाँ पर थोड़ा समझें, इन एग्जाम्पल्स को समझें, पहले थोड़े ये एग्जाम्पल्स होंगे तो उन एग्जाम्पल्स के बुनियाद पे हम मतलब जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो हम काफी वक्त से गलतियां करते आ रहे हैं, मिस्टेक्स करते आ रहे हैं, और हमें पता नहीं पड़ता टेंस जब भी मिलते हैं हमें, यानी जब 2 3 या 4 टेंसेस की मिलाकर जब टेस्ट आती है तो हमें सारे ऑप्शंस लग रहे होते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब ऐसा नहीं होता, ये तब होता है जब हमें जो वो कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता, हम कॉन्सेप्चुअली चीजों को नहीं देखते, हम सिर्फ क्या देखते हैं, हम तर्जुमे से मतलब ऑप्शंस को करते हैं, भाई तर्जुमे से थोड़ी करते हैं। अब तर्जुमा जिसका भी करें, किसका तर्जुमा गलत है मुझे बताओ, इसका तर्जुमा करें, ट्रांसलेशन करें, ये भी सही है, इसको ट्रांसलेट करें, ये भी सही है, इसको ट्रांसलेट करें, ये भी सही है, आप जिसको भी ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, तो मतलब हमारी लैंग्वेज के अंदर इनमें तो कोई एरर नहीं है। इसीलिए मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर पढ़ाते वक्त आपको कीवर्ड्स बताए थे कि देखो ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड जो होता है उसी से मतलब पड़ता है, उससे मीनिंग आती है। अगर कीवर्ड आप नहीं मतलब कोई देंगे या कोई इंडिकेशन ऐसा कीवर्ड का नहीं होता, क्लू नहीं होता, तो भले आप कितनी भी मैं बातें करता रहूं लेकिन उनसे कोई मैसेज तो निकलता नहीं है बात का। तो इसीलिए आपको क्या देना पड़ेगा, कीवर्ड देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कीवर्ड दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर कौन सा कीवर्ड दिया हुआ है, आप भी बताएं कि हम टेंस चेंज करें। प्लीज आपको बात तो समझ में आ रही है, ऐसा तो नहीं है। ओके आपको लग रहा होगा सर यू सीम टू बी चार्ज टुडे and going like a rocket rapidly or speedily, so how can we reach okay, how can we have an access to get you, no matter you know your mind is the fastest device to reach or even to pursue chase or even to overtake me, it doesn't matter at all, people like you I know, okay, I have to you know got a lot from you। तो आप देखिए कीवर्ड दिया हुआ है, इधर थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताऊं कि देखो यहाँ पर कीवर्ड दिया हुआ है, ये कीवर्ड दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये कीवर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर ये कीवर्ड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये कीवर्ड दिया हुआ है, तो मतलब आप देखो ये कीवर्ड्स, तो इन कीवर्ड्स को देखकर हम कोई ना कोई मतलब करेक्ट या अप्रोप्रिएट टेंस या उसका वर्ब सेट करेंगे। द अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड अ सिटी फ्यू मंथ्स अगो, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है कि भाई जो फिनिश्ड टाइम होता है तो फिनिश्ड टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये अगो फिनिश्ड टाइम है, अगो मतलब पहले, अब 5 मिनट पहले क्या, 10 मिनट पहले क्या हुआ, मतलब थोड़ी देर पहले क्या हुआ, तो वो फिनिश्ड हो चुका है, खत्म हो चुका, अब तो नहीं है ना, ठीक है ना, अब नहीं है प्लीज। तो जो खत्म हो चुका वो फिनिश्ड हो गया, तो आप उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, आप उसके साथ पास्ट परफेक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये समझे तो सही आप, ठीक है ना। तो ये फिनिश्ड टाइम है, ये येस्टरडे की तरह है, ये लास्ट डे की तरह है, ये लास्ट ईयर की तरह है, ये लास्ट मंथ की तरह है, ये मतलब जो है वो 2 डेज की अगो की तरह है, ये लास्ट मॉर्निंग की तरह है, ये जून की तरह है, ये 2005 की तरह है। तो जब ऐसी टाइमिंग आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि फिनिश्ड टाइम जो होता है उसका तो पता होगा, कल क्या था, फिनिश्ड हो चुका, लास्ट क्या था, फिनिश्ड हो चुका, लास्ट नाइट क्या, सर लास्ट नाइट फिनिश, ठीक है, हाँ फिनिश हो गई, मैं भी कहता हूँ, मैं कब कहता हूँ कि अभी तक चल रही है। तो जो फिनिश्ड है हम उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मैंने गलती कौन सी की है, मैंने गलती की है ये वर्ड। अब आप में से बोलेंगे गुस्सा करके मतलब नाराज होकर, सर आप देखो ये भी तो पास्ट का है, बेटा इसका यूज अलग है, मैं आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, ये नहीं है कि इसके ऊपर फिर तो सारे पास्ट लगा ले, इधर जितने भी पास्ट हैं वो आप सब लगा लो,
यहाँ पर हेड डिस्ट्रॉयड भी लगा ले, डिस्ट्रॉयड भी लगा ले, वाज डिस्ट्रॉइंग भी लगा ले, हेड बीन डिस्ट्रॉइंग भी लगा ले, पता नहीं जो भी है वो, मतलब फिर पास्ट है तो सब पास्ट, ऐसा थोड़ी है। पढ़ाएंगे आपको ये सारी चीजें, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएंगे। चाहते हैं कि आप मतलब सुकून महसूस करें, आपके अंदर यानी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, आप खुद ट्रस्ट से वो चीजें करें। तो आप देखें ये फिनिश्ड टाइम है, मैंने टाइम के नाम लिए, तो अब आप, अब सही हो गया। द अर्थ को एक डिस्ट्रॉयड फ्यू मंथ्स अगो, क्योंकि फिनिश्ड टाइम है, इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे फिनिश्ड टाइम के साथ, बेटा फिनिश्ड टाइम है इसीलिए फिनिश्ड टाइम के साथ ऊपर दे दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इधर देखो, शी रिप्लाइड टू मी 3 टाइम्स, शी रिप्लाइड टू मी 3 टाइम्स, ठीक है। तो अब आप देखो 3 टाइम्स, आप प्लीज रिमेंबर, remember the key word 3 times, 4 times, twice, often, like I mean or leave often, but 3 times, twice, or whatsoever, you know, such keywords were introduced there. Okay, do you recall or not, do you remember or not? Let me help please, I'm looking for your I mean your reply, your answer please. Yeah, it's good, so it's timely answer. It means you have preserved everything well, you have kept everything intact in your mind, it's a good thing. तो आप देखें ये 3 टाइम्स, ये जो कीवर्ड्स हमने दिया था, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया था, ठीक है ना, या प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिया था, ये पास्ट में नहीं है। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, हाँ आपकी बात सही है, आप जो आप हैं प्लीज आप तो इधर ध्यान दें, हाँ इधर देखें, हाँ बस। अच्छा, तो आप देखिए शी रिप्लाइड टू मी 3 टाइम्स, आप जब तर्जुमा कर रहे हो ना, बिल्कुल तर्जुमा सही है। आप बोलेंगे मैंने 3 से भी ज्यादा जवाब दिए हैं, हाँ सही है, भले आप जो भी नंबर लगा लो, मुझे नंबर से नहीं है, आपकी मर्जी है जो नंबर लगा लो, मुझे नंबर से नहीं है, मैं कुछ समझा रहा हूं। तर्जुमा बिल्कुल आपका ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हम ये टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मिस्टेक है। तो अब क्या इस्तेमाल करेंगे, आप लिखेंगे शी हैज रिप्लाइड टू मी 3 टाइम्स। शी हैज, देखो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पढ़ा था, शी हैज रिप्लाइड टू मी 3 टाइम्स। तो उर्दू या सिंधी से लेकर तर्जुमा करके आप टेंस बनाते हो, तब देखो मतलब इश्यू होता है, तब प्रॉब्लम होता है, तब गलती हो जाती है। तो शी हैज रिप्लाइड टू मी 3 टाइम्स, अब देखो ये होगी। अच्छा, अब हम आते हैं, शी हैज टोल्ड मी समथिंग इंपोर्टेंट यस्टरडे, तो टाइम की बात हो रही है, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस को, किस बुनियाद पे, टाइम के बुनियाद पे कर रहे हैं, ना कि ट्रांसलेशन के बुनियाद पे कर रहे हैं, ना कि ट्रांसलेशन के बुनियाद पे। ट्रांसलेशन के बुनियाद पे इनमें से कोई भी गलत नहीं है, लेकिन देखो टेंस टाइम दोनों है, भाई टेंस जो इस्तेमाल होता है वो टाइम के हिसाब से होता है, ठीक है, उस टाइम को देखकर हम टेंस इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम जो सिंधी उर्दू की निशानियां देखकर फिर हम तर्जुमा करते हैं। तो अब टाइम देखेंगे, तो यहाँ पर देखो लास्ट सेंटेंस है, शी हैज टोल्ड मी समथिंग इंपोर्टेंट यस्टरडे, यस्टरडे लिखा हुआ है, और मैंने कौन सी एरर की है, आपने पहले मुझे बता दिया कि सर देखो कितना गलत पढ़ाते हो, हम तो आपको मतलब करेक्शन करवाते हैं, अगर हमारी क्लास नहीं होती तो पता नहीं कहाँ तक आप पहुंच जाते। यही है, आपकी क्लास से पता नहीं कितना सीखा है मैंने, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि अगली बार भी आपकी क्लास हो तो मैं परफेक्ट बनूं, नहीं नहीं, अगली बार आप कोई और क्लास हो, आपकी क्लास नहीं, मजाक कर रहा हूँ, दिल में ना करना। अच्छा देखो ये गलती होगी बेटा, अब क्यों गलती हुई, क्योंकि ये टाइम लिखा हुआ, ये फिनिश्ड टाइम, बेटा ये फिनिश्ड टाइम है, कौन सा टाइम है, फिनिश्ड टाइम, फिनिश्ड हुआ, और फिनिश टाइम के साथ हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नोट्स में मतलब दोनों टाइम एक्सप्रेशंस दिए, एक डेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन दिए, मतलब फिनिश टाइम एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स दिए, और सेकंड कौन सा दिया है, इनडेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स दिए, मतलब वो जो इनकम्प्लीट टाइम होता है, जैसे टुडे एंड टुडे में इस्तेमाल है। अच्छा, आई हैव टॉट यू टुडे, अब मैंने टुडे क्यों लगाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, सुने, क्योंकि टुडे इज इनकम्प्लीट, जो टाइम इनकम्प्लीट होता है अभी तक मुकम्मल नहीं है ना, उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भले इस्तेमाल करें, आई हैव टॉट यू टुडे, ठीक है ना। अच्छा, आई हैव इंटरेक्टेड टुडे, ओके, या मतलब दिस वीक है, देखो वी हैव लर्नड टेंसेस दिस वीक। अब बताओ दिस वीक पूरा हुआ है, दिस वीक पूरा हुआ है या चल रहा है, अभी दिस वीक आज कौन सा डे है बताओ, आज कौन सा डे, संडे है ना,
हाँ सही बता रहे हो। नहीं संडे कहाँ है, आज थर्सडे। तो अभी देखो ये वीक चल रहा है, संडे फिर फ्राइडे सैटरडे वीक चल रहा है, तो मैंने दिस लगाया, कीवर्ड दिस है। तो दिस आ रहा है जब टाइम इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट टाइम ही नहीं, वो फिनिश टाइम ही नहीं है, तो आप उनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो देखो वी हैव लर्नड दिस वीक, वी हैव लर्नड दिस मंथ, वी हैव लर्नड दिस ईयर। अब देखो, क्योंकि ना ये दिस वीक, ना टुडे कंप्लीट हुआ है, ना दिस वीक कंप्लीट हुआ है, ठीक है, ना दिस मंथ कंप्लीट हुआ है, ना दिस ईयर कंप्लीट हुआ है, ये सब क्या है, ये सब इनकम्प्लीट है। तो जो इनकम्प्लीट है वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करो, मतलब ये टाइम है, हम टाइम के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टेंस तब तक समझ में नहीं आता जब तक आप दोनों चीजों को मिलाएंगे नहीं। बोलेंगे सर दोनों चीजें कौन सी, एक टेंस दूसरा टाइम, एक टेंस दूसरा टाइम। तो आप देखो ये जो टाइम मैंने अभी बताया जिसके साथ दिस लगाकर, ये इनकम्प्लीट टाइम, और आप भले परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करें, तो कीवर्ड्स इसके अंदर भी होने चाहिए, इसके अंदर भी। तो अब आप देखो ये सही हो गया, और यहाँ पर प्लीज करेक्शन कर दे, ये हेज हटा दो, ठीक है, इस हेड को हटा दो, अब ये दुरुस्त होगी। तो यहाँ पर देखो बड़ी मिस्टेक हम करते थे कि पास्ट को समझकर हेड लगाते कि सर ये तो मतलब बहुत है। अरे आप बोलेंगे, मतलब हम बोलते हैं ना, आप बोलेंगे सर जो दूर वाला पास्ट है, काफी दूर हो, उसके लिए परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें टीचर्स ने पढ़ाया है कि बहुत दूर वाला। भाई पाकिस्तान कब आजाद हुआ, 1947 में। तो आपने किताबों में कभी पढ़ा कि पाकिस्तान हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन 1947, ये पढ़ा, या पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1947, कौन सा पढ़ा? इससे बड़ा कोई दूर वाला एक्शन है, टाइम है 1947 वाला। लेकिन फिर भी हमने कौन सा मतलब इस्तेमाल किया है, मैं इधर एग्जांपल लिखता हूं, फिर भी हमने कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया। देखो आपने ये पढ़ा होगा बुक्स में, पीएस में पढ़ा होगा, इंग्लिश में पढ़ा होगा। अच्छा, क्या आपने ये पढ़ा है पाकिस्तान हैड बीन एस्टेब्लिश्ड? बेटा ये बातें समझे, पाकिस्तान हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन 19, एक मैं एग्जांपल ये दे रहा हूं। दूसरा देखो सिर्फ वर्ब का मतलब चेंज है, पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड, पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1947। फर्क कौन सा है देखो, दोनों में यहाँ पे फर्क है और यहाँ पर फर्क है। कौन सा फर्क है? इधर देखो परफेक्ट टेंस है, ये हेड लिखा हुआ है ना, परफेक्ट है। अब लोग कहते हैं ना कि ऐसा एक्शन जो बहुत पुराना हो, जो दूर हो, भाई 1947 से कोई पुराना होगा, ठीक है, फिर भी ये गलत और ये सही। ये पास्ट सिंपल है बेटा, वाज क्या है, वाज पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होता है, ये पैसिव में इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये पास्ट सिंपल की है, ये स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल की है। अच्छा क्यों लगाया हमने, ये क्यों लगाया, ये हमने इसको देख कर लगाया। ये क्या है, ये टाइम है, पास्ट का टाइम है। कौन सा टाइम है? फिनिश्ड टाइम है, फिनिश्ड टाइम है, फिनिश्ड टाइम है, ठीक है ना, आपने लगा लिया। पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1947, फिनिश टाइम। तो देखो पास्ट के लिए, यानी पास्ट, सॉरी पास्ट सिंपल के लिए कीवर्ड्स होते हैं, वो ध्यान में रखना। पास्ट सिंपल टेंस कीवर्ड्स होने चाहिए, कीवर्ड्स देखो, पास्ट सिंपल टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म में कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर वो कीवर्ड्स होंगे या आप उनको फॉलो करेंगे तो वो आपकी एरर नहीं होगी। अब कौन से कीवर्ड्स हैं, जैसे आप देखो लास्ट है, ठीक है, अब लास्ट टाइम के हिसाब से आप लास्ट डे देखो इस्तेमाल करो, ठीक है, लास्ट मंथ इस्तेमाल करो। लास्ट लिखा हुआ है, अब मैंने एक बार लिख लिया है, अब लास्ट लगाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर देना, लास्ट डे, लास्ट मंथ, हाँ, लास्ट ईयर, देखो ये आप, या लास्ट वीक, ठीक, मतलब ये आप तरतीब दे देना, ये हो गया, आपने वर्ड इस्तेमाल कर लिया। अच्छा इसी मतलब जो फिनिश्ड टाइम होता है, जो फिनिश टाइम होता है। अब आप बोलेंगे सर एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है, हाँ मुझे पता है आपका जो क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सर अगर हम इस्तेमाल करें इन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन, मैंने एक बार बुक में लिखा था, वहां पर लिखा हुआ था इन प्लस टाइम, मैंने लिखा इन प्लस टाइम के साथ आप जो है वो पास्ट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। तो किसी स्टूडेंट ने पढ़ा कि सर इन प्लस टाइम के साथ कैसे होगा, आई हैव रीच्ड इन टाइम, ये तो सही हो गया। तो देखो कभी कभी स्टूडेंट्स जो है ना,
अपने जो नोट मेकिंग करते हैं कॉपी के अंदर वो प्रॉपरली नहीं करते, वो क्लीनली नहीं करते। सुबह सुबह होता है, जाहिर है उन्हें कुछ पता भी नहीं पड़ता। तो मतलब जब आप क्लीनली कोई पॉइंट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नोट नहीं करेंगे, तो जाहिर है आपको जब आगे जाकर पढ़ेंगे या किसी को कॉपी देंगे तो मतलब वो तो पता नहीं क्या सोचेगा। तो यानी आप देखो इन प्लस टाइम होगा, देखो ये पढ़ाई, ये देखो इधर ये पढ़ाई हम यहां से लेते हैं और ज्यादा नहीं, ये इन प्लस टाइम है। अच्छा ये इन प्लस टाइम है बेटा जी, इन प्लस टाइम, इन प्लस टाइम मतलब इन प्लस फिनिश्ड टाइम, इन प्लस टाइम मतलब फिनिश्ड टाइम है, ये इन प्लस फिनिश्ड टाइम, ये इन पढ़ा है, ये देखो। तो जब ऐसा टाइम आएगा तो भी आप पास्ट इस्तेमाल करेंगे, तो भी आप पास्ट सिंपल टेंस का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, इन प्लस टाइम के साथ। जैसे आप देखो मैं आपको बता रहा था इधर, यानी इन 2010, इन 2005, ठीक है, इन अच्छा 2007, देखो ये हो गया, तो ये हो गया, या इन जुलाई, क्या इन जुलाई या इन जून, चलो आप बोलेंगे सर जुलाई चल रही है, अच्छा इन जून आपने लिख लिया। तो मतलब कोई भी फिनिश्ड टाइम, यहाँ पर इन अल्फाजों का के देने का मकसद, यानी कीवर्ड्स देने का मकसद क्या, यानी आप जो है वो स्पेसिफिकली इन चीजों को अंडरस्टैंड करें कि जो फिनिश्ड टाइम, अब जरूरी नहीं है कि मैंने सारे अल्फाज लिखे हैं, अब इधर भी ये समझ लें कि ये इन प्लस टाइम, देखो इन प्लस टाइम वाला मैंने ये दिया। अब 2010 देखो पास्ट में चला गया, 2005 पास्ट में चला गया, 2007 देखो पास्ट में चला गया, तो ये सब पास्ट में चले गए। तो आप थोड़ी इस्तेमाल करेंगे इनके साथ क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप इनके साथ पास्ट सिंपल। तो क्या हम मतलब मैं इतना जोर से जो आपको बता रहा हूं, यानी किस चीज पे आइए, मतलब इसका थीम क्या हुआ, थीम क्या निकला, कॉमन क्या निकला पास्ट टेंस का, निकला वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस फिनिश्ड टाइम, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस फिनिश्ड टाइम, ये इनका कॉमन निकला, ये थीम है इनका बस, और कुछ भी नहीं है। मैं भले कितना बोल रहा हूं लेकिन पूरा आपका करेक्ट ऑप्शन, थीम से मुराद जो करेक्ट ऑप्शन है आप देखो वो आपका होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी फिनिश्ड टाइम के साथ वो आपको मिल जाता है, तो कोई मसला नहीं है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, आप मुझे बताएं कि आपने सर इधर भी गलती की, अगर हम ना होते तो आपकी देखो ये भी एरर रह जाती, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखो मैं आपको बता रहा हूं, they have, okay, they have taught us, they have taught us few years back। अब इधर देखो थोड़ा वर्ड चेंज है, बेक, राइट, देखो they have taught us few years back, ठीक है ना, तो वर्ड मतलब देखो ये चेंज है, कौन सा लिखा है बेक, और उधर मैंने कीवर्ड नहीं दिया था, भले नहीं दिया था मैंने कीवर्ड बेक, लेकिन बेक भी क्या है, मतलब वो भी पास्ट हो गया, ये भी लास्ट की तरह इस्तेमाल होता है पास्ट के एक्शन के लिए ना, पास्ट के वर्ब के लिए, देखो ये भी मतलब पास्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो मैंने एरर कर दी, अब ये किलू पड़ा है, ये एंट पड़ा है, पूरे सेंटेंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपने देख लिया कि फिनिश्ड टाइम है और ये गलती है, बस यहाँ पर ही काटा कर दें, ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या मिलेगा, देव टॉट, हेव टॉट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, हेड टॉट, सी ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, टीच, डी ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, टॉट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, टॉट होगा, किसको देकर, बेक को देकर। तो मतलब सिर्फ आपको क्या देखना है, टाइम देखना है, टाइम देकर आपको पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से देखो जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर भी हैबिचुअल एक्शंस थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर भी कीवर्ड्स लगाकर हमने हैबिचुअल एक्शंस पढ़े, पास्ट सिंपल के अंदर भी कीवर्ड्स होते हैं जो हैबिचुअल एक्शंस को शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं, पास्ट के अंदर भी होते हैं। अच्छा वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, देखो हैबिचुअल, हमारी हैबिट्स तो देखें ना, वो जो हैबिट्स जो अभी हमारी प्रेजेंट में वो पास्ट में भी होती है, तो जब वो पास्ट में चली जाएंगी तो क्या फिर भी आप प्रेजेंट के वर्ब इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे ना, आप पास्ट का वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो देखो पास्ट के वर्ब के लिए देखो जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, जो हैबिट्स होती है ना पास्ट की, ठीक है, पास्ट की हैबिट्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, उनके लिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करें तो भी जायज है, उनके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें तो भी राइट है,
ठीक है, या आप जो है वो उनके साथ यूज टू, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें तो भी सही है। तो देखो मतलब ये यानी कौन सी हैबिट्स है, पास्ट की हैबिट्स है। आप इधर कीवर्ड इस्तेमाल कर दें, ठीक है, उसको देखकर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको क्या नजर आएगा, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन नजर आएगा। सही, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो पास्ट का हैबिचुअल वर्ड जो है वो नजर आएगा। तो ये हैबिट्स हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, आप ये इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपका दुरुस्त हो जाएगा। वुड के साथ, यूज्ड टू के साथ, ये भी आपको जो रिप्लाई मिलेगा या यहाँ पर भी जो आपको आंसर मिलेगा वो पास्ट के यानी हैबिचुअल एक्शन का मिलेगा। तो ठीक है, अब इतना काफी है, इंशाल्लाह कल और ज्यादा डिस्कस करेंगे। मैं आपको यानी इनके मुख्तलिफ जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो थरोली मैं आपको बताऊंगा। अब आप मतलब क्लियरिटी हो गई होगी कि पास्ट सिंपल टेंस जो वो किस तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।